Hello, good afternoon, everyone. This is Amit Gupta, MCC head, and we will wait for 3 to 4 minutes more for everyone to join. Currently, we are 20 members. Thank you. Something has some doubt. One has raised a hand, so you can unmute Yes, yourself and tell that if you have anything. A something. now everyone can unmute themselves. Or in the meantime, if you have any doubts, you can ask. Till then, we are waiting for more members. Akshay, we are 26 now. I think we can start. Yeah. Okay. Okay. Sure. So good evening all. So first we will recap the yesterday's session and so what we did in last day, and then we will start with the today's workout. Okay. So very first we will recap quickly what we learned yesterday. सबसे पहले हमने देखा था history of React. I saw you the official website and tell you who created and maintained by Facebook also. Okay, what React is a JavaScript library. We saw what is React, why we use React, uses of React. We say, and today we are doing the all installation. I hope you did install the Node.js. If you not, don't worry, we will do here. And we saw a few concepts, advanced JavaScript concept like let, const, spread operator, rest operator, and destructuring. Today we will see the arrow function and the you saw map function here, filter. We left with the find and find index. We will see today. So that finds. Do you have anyone have any questions regarding up to this?
So I can start with today's session. I shared this file also, which we worked on yesterday. So if you not have any doubts, I will start with today's thing. Also, if you had faced any issue yesterday on installing the things, you can ask. Yes. I'll share with Very first thing, please let me know how many of you installed the Node.js. Please comment it, yes or no, or you can just raise your hand. Okay, Yogesh has installed. Good. Good. Satyajit, Vivek is also Shayad. Okay, nice. Baz. Okay, good. That much. So nice. Most of you have installed, but I think few of you not installed the Node.js. So And let's. is there anyone who faced any issue? There is the hand now. Hmm. Everyone first lower your hands, then the others can raise. Otherwise, we can't Someone receive you. has commented something. Trying to install, but there is a problem occurring. Yeah, Tanmay Tikekar. No problem. We will solve here. Okay. So no issue. I think. Sorry, I must share my screen now. Okay. Is my screen visible? Are you Hello? on the Teams page? Yes, it's Yes, visible now. yes. I am on this desktop and VS Code and this one. Yes. We can see the Browser. browser. Yes. Okay, fine. So let's start with today's concept is very first I will just tell you the what is our flow. सबसे पहले हम देखेंगे where. कल थोड़ा सा यो इशू हो गया था अपना लेट और वैर के बाद में, कुछ बच्चों को समझा, कुछ बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन था. सो हम सबसे पहले वैर एंड लेट का कंसेप्ट क्लियर करेंगे. आफ्टर दैट वी विल मूव टूवर्ड्स फ्यू कंसेप्ट्स और लेफ्ट इन डिस्ट्रक्चरिंग एंड एरो फंक्शन देखेंगे. हम ये 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे एडवांस जावास्क्रिप्ट में. और उसके बाद में हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस फॉलो करेंगे. उसमें कम से कम हमें 15 से 20 मिनट लग सकते हैं. ओके, सबका इशू सॉल्व करेंगे हम उस 15 से 20 मिनट में. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ रिएक्ट जेएस. ओके, दिस इज आवर टुडेस टारगेट. सो सबसे पहले अपन ये देखते हैं. जस्ट क्लियर द कंसेप्ट ऑफ वेयर. Now see, there is a one major difference between let and where. The let and where is this कि अभी जो where है, where can be assigned globally, मतलब out of the scope. जैसे यहाँ पे मैंने if loop लिखा ही है, ठीक है. आपको सबको मेरा if तो दिख ही रहा होगा. I hope so. अभी मैंने यहाँ क्या होता है, जैसे आपको एक पता है, जैसे हम करली ब्रेसेस देते हैं, कोई फंक्शन हो गया, इफ हो गया, फॉर हो गया, उसको हम स्कोप मानते हैं. मतलब स्कोप इन द सेंस वो जो वेरिएबल का जो ये होता है स्कोप, मतलब उसको यूज हम इसी पर्टिकुलर एरिया में कर सकते हैं, इसके बाहर नहीं कर सकते. ये कब 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 होता है अपना नॉर्मल सी प्लस प्लस या फिर सी वाले लैंग्वेज में ऐसा होता है, ठीक है. बट अगर मैं ये जावास्क्रिप्ट में वैर यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, ओके, यहाँ पे डिक्लेयर मैं कर देता हूँ वाई. यहाँ पे मैं y डिक्लेयर करता हूँ. यहाँ पे मैं पहले प्रिंट करा रहा हूँ y. एंड अभी मुझे क्या करना है, मुझे मेरे स्कोप के बाहर भी इस y की वैल्यू चाहिए. सो मैं यहाँ पे y प्रिंट करा के देखता हूँ, ठीक है. तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास में. सो व्हेन आई रिफ्रेश, y इज अनडिफाइंड. y is undefined. console.log y is undefined. We are getting noise from some of the. And can you Please please unmute unmute? yourself, everyone. Yeah. Just a second. Good. I think it's gone now. Okay, fine. So where we was, yeah.
here we see that I printed here console y. I think this is not a refresh. Akshay, where from Akshay printing. Okay. Okay, y is undefined because it is out of the if scopes. If I define here, let's say y is equal to 19, trying to access the where I get the value of y as 19, but if I make it let, see what happened. Okay, we miss one thing. Where? Okay, see. Printing if x is equal to 1. Oh, then only to go. Yes, हाँ. So we are missing that this if loop. It is actually पहले क्या हो रहा था, हम x की वैल्यू वो रीड ही नहीं कर रहा था क्योंकि x की वैल्यू अलग थी. So इसके अंदर ही नहीं जा रहा था, मतलब y की वैल्यू 10 असाइन ही नहीं हो रही थी. So it's why printing always 19. ठीक है. तो अभी क्या है, यहाँ पे मैंने एक स्कोप बनाया है. ठीक है. यहाँ पे एक ये दिया है where is y is equal to 19. अभी मैं इसको रीइनिशियलाइज करता हूँ, मतलब रीडिक्लेयर करता हूँ मैं where y is equal to 10. ठीक है. where y is equal to 10 किया मैंने, तो देखते हैं क्या होता है. सॉरी, हाँ, y या 10 किया, लेकिन अभी मैं where के जगह पे अगर यहाँ पे let लिखता हूँ. ठीक है. यहाँ पे मैं let लिखता हूँ, ये रीडिक्लेयर हो गया हमारा where में. ओके. लेकिन अगर मैं let लिख रहा हूँ यहाँ पे, yes, it will not allow us redeclaring. Redeclaration is not allowed in the let, but for where we can redeclare the thing. Yes, this is the one major difference between where and let. And const is the same thing. Const we cannot change the variable. मीन्स सभी कॉन्स्ट आपको फिर से रिकैप दे देता हूँ. अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट देता हूँ, मतलब यहाँ पे मैंने x दिया है, x इज इक्वल टू 1, और मुझे इसको फिर से रिलेशनाइज करना है, x इज इक्वल टू 20. सो जैसे मैंने अभी यहाँ पे y दिया है, y यहाँ पे मैं कॉन्स्ट देता हूँ, कॉस्ट y इज इक्वल टू 19, और मैं अगर y इज इक्वल टू 10 कर रहा हूँ तो यहाँ पे एरर आ जाएगा. कॉन्स्ट का क्या होता है, मतलब ही कांस्टेंट होता है, वो थ्रू आउट द प्रोग्राम कांस्टेंट रहता है. ओके. लेट हमारा चेंज हो सकता है, यहाँ पे मैं लेट करूंगा, अगर मुझे चेंज करना है, सो फॉर दैट आई हैव टू यूज लेट. ये यहाँ पे एक ऐसा था ना, एक मेजर डिसएडवांटेज क्या है वैर का, अगर मैं यहाँ पे फिर से कभी वैर लिख देता हूँ और मुझे पता नहीं था कि मैंने ये वेरिएबल पहले यूज किया है, तो वो क्या करेगा, हमारे फ्लो के हिसाब से क्या होना चाहिए था, हम नॉर्मल हमारा फ्लो क्या रखते हैं, जब हम नया डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंस का ही हमें वैल्यू चाहिए होता है. अगर मैं उसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ, रीइनिशियलाइज, तो ठीक है, वो रिलेशन इनिशियलाइज हो जाना चाहिए. बट जब मैं रीडिक्लेयर करता हूँ, रिडिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है कि मेरा जो हमें जब मुझे डिक्लेयर करना है, तो वो नया वेरिएबल होना चाहिए हमेशा. मतलब यहाँ पे मैंने y लिया ना, तो वैर के हिसाब से मेरे को यहाँ पे x होना चाहिए, y पे यहाँ पे एरर दे देना चाहिए था कि मैं रीडिक्लेयर कर रहा हूँ उसको, कि हमें ये एरर दिखाना चाहिए था कि पहले से y डिक्लेयर है, तुम इसको रीडिक्लेयर नहीं करते. बट वैर का क्या ये ड्रॉबैक है. टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक, ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए उन्होंने लेट और कॉन्स्ट दो चीजें बनाई थी. लेट ने ये चीज कवर कर ली कि तुम उसको रिडिक्लेयर नहीं कर सकते, और कॉन्स्ट ने क्या कवर अप किया कि तुम उस पर्टिकुलर वेरिएबल को अगर तुमने एक बार इनिशियलाइज किया तो तुम उसको फिर से इनिशियलाइज नहीं कर सकते. ओके. हाँ, ये था इसका मेजर डिफरेंस बिटवीन वैर, लेट एंड कॉन्स्ट. आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा. ठीक है. एंड वन मोर थिंग वी आर अनाउंसिंग हियर, कि अगर आपको कोई भी कंसेप्ट नहीं समझेगा तो हम आपके लिए वीडियो भी शेयर करने वाले हैं आफ्टर दीज सेशंस. इसके जो भी रिकॉर्डिंग्स होंगे वो आपको शेयर करेंगे. ठीक है. तो ये हो गया हमारा कॉन्स्ट और इसका. तो मैं इसको कमेंट करता हूँ
अभी हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट भी रह गया था, और एक हमने डिस्ट्रक्चरिंग देखा था। डिस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या होता है कि जो भी हम ऐसे अरे में जो वैल्यूज लिखते हैं बड़े बड़े, जैसे अभी मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, ऑब्जेक्ट है या फिर अरे है, अरे के अंदर मेरी डिफरेंट इंडेक्सेस है, तो मुझे उस पर्टिकुलर इंडेक्सेस की वैल्यू मेरे वेरिएबल में फेच करनी है। ठीक है, पर्टिकुलर इंडेक्सेस की वैल्यू मेरे को वेरिएबल में फेच करनी है, तो वो कैसे करेंगे? यूजिंग डिस्ट्रक्चरिंग हम ऐसे नॉर्मली यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ये फर्स्ट इंडेक्स है, नेम लिखा है, तो ये अक्षय को फेच करेगा। बीच में गैप है, गैप पे क्या जाएगा? 1 2 3 जाएगा। फिर वैल्यू है, वैल्यू किसके लिए इनिशियलाइज होगा? ये 12 लेगा। तो आपको फिर से दिखा देता हूँ मैं एक बार, क्योंकि ये कंसेप्ट मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये कंसेप्ट हम हमारे रिएक्ट में यूज करने वाले हैं। और ये नॉर्मली हम जब नॉर्मल जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम यूज करते हैं तो ये ऐसे चीजें हम नहीं यूज करते, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। इसका काफी प्यारा यूज केस है रिएक्ट में, हम अच्छे से देखेंगे उसको जब हम प्रॉप्स और स्टेट पास करते हैं। मतलब एक एक पेज से दूसरे पेज पे जब हम डेटा पास करते हैं तो तब ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये जो 2 3 चीजें थी, लेट, वेर और डिस्ट्रक्चरिंग, इस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो ये हो गया था, हमने देखा था डिस्ट्रक्चर इन अरे। सो हमारा रह गया था डिस्ट्रक्चर इन ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट में देखते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया ओबीजी करके, जिसमें मैंने नेम और एज दो फील्ड बनाई है, नेम एंड एज। अभी मुझे क्या करना है? मुझे इस मेरे ऑब्जेक्ट में से मुझे पूरा ऑब्जेक्ट यूज नहीं करना है, मुझे सिर्फ नेम फेच करना है। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैंने नेम लिखा, फिर एज लिखा। अभी जस्ट सी, मैंने ऑब्जेक्ट में से दोनों एट्रीब्यूट फेच करके रखे अलग अलग वेरिएबल में। तो अभी मुझे डिस्प्ले करना है सिर्फ नेम। सो आई जस्ट कंसोल लॉग, मैंने जब कंसोल लॉग किया नेम, सो लेट्स सी क्या आता है? अक्षय, करेक्ट। सो लेट्स चेक करते हैं कि यही वेरिएबल है कि कोई दूसरा है। या अक्षय 1 2 3, अक्षय 1 2 3 यहाँ पे फेच हो गया। बट अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करूँगा पूरा, आई कैन कंसोल लॉग एज ऑल्सो। मैं यहाँ पे एज फेच कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एज 21 आ गया। ओके, सो दिस इज द डिस्ट्रक्चरिंग इन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अगर आपको लेट्स से हमने 3 फील्ड बनाया और आपको उसमें से 2 ही चीज़ों की ज़रूरत है, तीसरे की ज़रूरत नहीं है, तो उसको कैसे फेच करेंगे? लेट्स सी, एज वैल्यू लिख देते इसको वैल करके, और वैल्यू कम से कम 100 दे देते हैं। ओके, सो नाउ आई डोंट वांट एज, मुझे एज नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे उसकी वैल्यू चाहिए। आई विल फेच वैल्यू हियर, वैल्यू, वैल्यू, लेट्स सी क्या आता है। अनडिफाइन, ओके, या यस 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 यस। यहाँ पे ना एक क्या मेजर डिफरेंस होता है डिस्ट्रक्चरिंग इन अरे एंड डिस्ट्रक्चरिंग इन ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में जब हम वैल्यू को फेच करते हैं तो उसका जो नेम होता है, जो एट्रीब्यूट नेम है, इट शुड बी सेम। यस, इट शुड बी सेम। मतलब अभी जो एट्रीब्यूट नेम देख रहे हैं आप यहाँ पे, नेम है, एज है, वैल है, जो हम ये करली ब्रेसेस के अंदर जो भी चीज लिखते हैं और उसका जो फ्लो है वो सेम होना चाहिए। मतलब अभी मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था मेरा जिसमें नेम, एज और वैल्यू दिया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? नेम, एज और वैल्यू ही होना चाहिए। अगर मैंने जैसे देखा, मैंने फुल वैल्यू टाइप किया था, या फिर मैं वैल्यू 1 लेता हूँ यहाँ पे, तो वो क्या बोलता है? अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड एरर दे देगा, अनडिफाइंड। बट अगर मैं यहाँ पे अरे का देखता हूँ, अरे का कंपैरिजन करता हूँ, ये मेरा क्या है? नेम है, वैल्यू है। लेट्स से मैंने यहाँ पे वैल्यू 1 लिखा, ठीक है। हाँ सॉरी, यहाँ पे नेम डबल डबल हो गया है, तो उसको मैं पहले इसको कमेंट कर देता हूँ इस चीज़ को। What happened to my laptop? I will just comment it out. Okay, and let's see. ओके, या देखा आपने यहाँ पे अरे में क्या हुआ? मैंने वैल्यू का नाम वैल्यू 1 दिया, बट फिर भी वो फेच हो गया। ठीक है, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अरे एंड ऑब्जेक्ट, अरे डिस्ट्रक्चरिंग एंड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। आई होप आपका ये कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमें बस यही याद रखना है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट में से कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट फेच करना है, फेच करते हैं, तो उसका जो सीक्वेंस है और उसका नाम है वो हमें क्या रखना है? सेम रखना है, ताकि आपकी रीडेबिलिटी प्रॉब्लम भी ना हट जाए। मतलब आपको पता रहे कि वैल है तो हाँ, ये वैल्यू मैंने फेच किए, तो ये इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का है। ठीक है, मोस्टली हम वैर और ये डेटा ट्रांसफरिंग में यूज करते हैं जब प्रॉप्स एंड ऑल स्टेट्स देखेंगे।
वो आपको बहुत मजा आएगा तब। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर डे टू कंटेंट। आज हम देखेंगे एरो फंक्शन। एरो फंक्शन कैसे काम करता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एरो फंक्शन मोस्टली जितने भी हम फंक्शंस लिखते हैं स्टार्ट टू एंड सारे एरो फंक्शंस ही होते हैं, वो चाहे कितना भी बड़ा फंक्शन हो या छोटा फंक्शन हो। अभी एरो फंक्शन के सबसे अच्छे एडवांटेजेस क्या है, वो बहुत सिंपल है। वो आपको डिफिकल्ट लग सकता है, थोड़ा स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ट्रिकी लगेगा लिखना, बट इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। एंड आफ्टर दैट एरो फंक्शन के बाद में उसका बहुत सारे यूसेज भी है। जब हम JSX सिंटैक्स पढ़ेंगे तब वहाँ पे एरो फंक्शंस का आपको अच्छे से समझ में आएगा। और एक चीज़, जो हमारा रिएक्ट है पहले क्लास बेस्ड कंपोनेंट था पूरा, बट अभी क्या है, आफ्टर द रिलीज ऑफ 17 वर्जन, जैसे मैंने कल बताया था, इट्स टोटली फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट है मतलब इसमें सारे हम एरो फंक्शंस ही यूज करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज आवर एरो फंक्शंस। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया प्रिंट करके। ठीक है, पहले अपना नॉर्मल फंक्शन देखते हैं अपन। सो लेट्स डिलीट दिस फॉर नाउ। ये अपना नॉर्मल फंक्शन है। नॉर्मल फंक्शन कैसे लिखते हैं हम अपना फंक्शन कीवर्ड, जस्ट नेम ऑफ द फंक्शन लाइक प्रिंट। इफ यू वांट टू पास एनी पैरामीटर वी कैन पास पैरामीटर, फॉर नाउ मेक इट एज एम्प्टी एंड आई विल जस्ट हार्ड कोड वैल्यू हियर। जैसे मैं अभी यहाँ पे अक्षय लिख देता हूँ, अक्षय अंकी मैंने यहाँ पे लिखा है कंसोल लॉग में। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी जस्ट फंक्शन को कॉल करूँगा। नॉर्मल आपको तो पता है फंक्शन को कॉल करने के लिए कुछ नहीं लिखना करना पड़ता हमें, फंक्शन नेम और उसकी पैरेंथेसिस मींस दिस राउंड ब्रैकेट्स, फंक्शन नेम एंड राउंड ब्रैकेट्स। हाँ, फंक्शन नेम हम फंक्शन कॉलिंग कब करेंगे हमारे रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स में, इवेंट्स पे। इवेंट हैंडलर्स रहते हैं, मतलब इवेंट्स तो आपको पता ही होगा, मोस्टली ऑन क्लिक इवेंट होता है, ऑन चेंज इवेंट होता है। मोस्टली ये दो इवेंट हम देखेंगे। ऑन चेंज मतलब इस पर्टिकुलर जो भी मेरा डेटा है उसको अगर मैं वैल्यू चेंज हो रही है तो तब वो इवेंट ट्रिगर होगा। ऑन क्लिक मतलब जब मैं माउस को क्लिक करूंगा, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऐसे अपन इवेंट सारे देखेंगे। मैं आपको लिस्ट भी शेयर कराऊंगा उसके। ओके, so again there is I think something error from top. Okay, we are getting from here. Let's comment this things. So ये मैं ये डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने जैसे कल भी शेयर किया था आज भी शेयर कर दूंगा, सो नॉट टू वरी, यू कैन रेफर आफ्टरवर्ड। या यहाँ पे देख सकते हैं हम हमारा नॉर्मल फंक्शन कॉल हो गया है। जैसे अपन ने देखते हैं ये नॉर्मल फंक्शन है, ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट, बट इन ES6 आफ्टर दी ES6 वर्जन इज कमिंग, उसमें क्या चेंजेस आया है। ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है, इसको रखते हैं रेफरेंस के लिए। ठीक है, इसको करते हैं कॉपी, लेट्स सी, मतलब कॉपी पेस्ट करके हम उसमें एडिट करने की कोशिश करते हैं कि एरो फंक्शन एंड ये नॉर्मल फंक्शन में क्या डिफरेंस है। हाँ, और एक चीज, एरो फंक्शन को ही हम मोस्ट ऑफ द टाइम एरर फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, सो अगर आपके कहीं पे आपने क्वेश्चन एनकाउंटर हुआ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरो और एरर फंक्शन, या फिर बहुत सारे ऐसे यूज केसेस भी आता है, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर एरो फंक्शंस को ही एरर फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, सो तो कंफ्यूज मत होना आप। तो फंक्शन का नाम हम प्रिंट ही लगते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे हम फंक्शन कीवर्ड के जगह पे कॉन्स्ट यूज करते हैं। वी कैन यूज कॉन्स्ट और लेट हियर। अगर आपको पता है कि हम ये वाला फंक्शन हम फिर से री इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं या उसको चेंज नहीं कर रहे उसके डेफिनेशंस, तो हम क्या रखेंगे, उसको कॉन्स्ट रखेंगे। और स्टैंडर्डाइज वे ये है कि फंक्शन को ना आप कॉन्स्ट ही रखें। अगर आपको दूसरा ये करना है, री इनिशियलाइज करना है, तो उसको दूसरा नाम दे के फिर से उसको कॉन्स्ट करें, ताकि आपके जो प्रोग्राम के कंसिस्टेंसी एंड फ्लो बना रहे। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे क्या होता है अभी, यहाँ पे देखो, आपको देख रहा हूँ मेरा एडिटर क्या कर रहा है, मेरा एडिटर एरर थ्रो कर रहा है। यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा अच्छे से, एरर थ्रो कर रहा है रेड लाइंस में। तो इसका कैसा आता है अभी, जो आफ्टर दी, यहाँ पे हमें फंक्शन नेम के बाद में देना पड़ता है इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद में आता है हमारा पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस आता है, पैरेंथेसिस के अंदर हम सिंगल पैरामीटर और मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। आफ्टर द पैरेंथेसिस वी नीड टू गिव अगेन इक्वल टू एंड ग्रेटर साइन। सिंपल हो गया, ये हो गया हमारा एरो फंक्शन। सिंपल है, देखो इसके दो पार्ट डिवाइड कर सकते हैं हम, बिफोर इक्वल टू एंड आफ्टर इक्वल टू। ओके, बिफोर इक्वल टू के अंदर क्या होता है, पहले हम सिंपल कॉन्स्ट और जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वैर 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 कुछ भी, वैर प्रिंट, लेट प्रिंट, उसी तरीके से हमने कॉन्स्ट प्रिंट किया यहाँ पे। जैसे अपन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, ऊपर देखा होंगे आपने, जैसे ऐसे ही सिंपल वैसे ही करना है यहाँ पे भी, कॉन्स्ट प्रिंट। और आफ्टर दैट उसको फंक्शन ट्रीट कराने के लिए हम इक्वल टू साइन देते हैं, और यहाँ पे पैरेंथेसिस एंड एरो फंक्शन, हमारा एरो फंक्शन विथ करली ब्रेसेस। ठीक है, लेट्स ट्राई टू रन
देखते क्या होता है। सेम रन हो गया, ठीक है। सो ये है सिंपल अपना एरो फंक्शन। अभी इसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या वेरिएशंस है और क्या क्या एडवांटेजेस है एरो फंक्शन के। अगर मैं यहाँ पे कोई पैरामीटर पास कर रहा हूँ, लेट्स से नेम, and read the value of name here, name. I will just pass here a name, Shivam Kudri. Let's see, yeah. इसने पैरेंथेसिस में मतलब वैल्यू भी रीड कर ली, ओके। अभी मेरे पास में एक ही पैरामीटर है, तो मुझे क्या करना है, मुझे मेरे एक ही पैरामीटर के लिए मेरे को ये राउंड पैरेंथेसिस नहीं देनी है, ठीक है। सो ओके फाइन। एरर फंक्शन क्या बोलता है, ठीक है चलेगा भाई, मत दो ये पैरेंथेसिस, एक ही तुम्हारे पास में पैरामीटर है ना, सो नो यूज मींस यू डोंट रिक्वायर टू गिव द पैरेंथेसिस फॉर द ओनली वन पैरामीटर। और ये चीज ना सिर्फ एक ही पैरामीटर की एप्लीकेबल होती है। अगर मेरे पास में और एक है जैसे वैल्यू भी पैरामीटर है, तो वैल्यू पैरामीटर के लिए मुझे फिर कंपलसरी हो जाता है कि पैरेंथेसिस दूं, क्योंकि उनका वो सिंटैक्स है। हम एक तो नॉर्मली डिटेक्ट कर लेता है, दिस इज एडवांटेजेस, कि अगर आपके पास में एक ही पैरामीटर है तो आप पैरेंथेसिस नहीं दे सकते, एक पैरामीटर में काम चला लेंगे। और ऊपर से और एक एडवांटेजेस कैसा है, अभी देखो यहाँ पे मैंने कंसोल लॉग किया, आई कैन इवन अवॉइड दिस करली ब्रेसेस ऑल्सो। मैं इस पूरे फंक्शन को एक लाइन में लिख सकता हूँ। लेट्स सी क्या होता है। आई होप रन हो जाना चाहिए, यस रन हो गया। देखो दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी, दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एरो फंक्शन। मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा होता है ना, हमें कोई एक सिंपल सा टास्क परफॉर्म करना होता है जिसके लिए हमें सिंगल फंक्शन चाहिए होता है, मतलब एक ही लाइन का कोड लिखना होता है। सो वी कैन यूज सिंपली एरो फंक्शन। सिंपली बिफोर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, कॉन्स्ट प्रिंट, कॉन्स्टेंट फंक्शन का नाम, आफ्टर इक्वल टू उसका पैरेंथेसिस, देन एरो, इसको आप एरो भी बोल सकते हैं या फिर इक्वल टू एंड ग्रेटर साइन। इट इज बेटर टू रिमेंबर एज एरो, एरो समझ में आता है हमें कि हाँ भाई एरो जैसे ही दिख रहा है, इक्वल टू है ग्रेटर साइन है, ओके। फिर आफ्टर दैट कंसोल लॉग, कंसोल लॉग मैंने यहाँ पे बस प्रिंट करा के लिए है। इसके अंदर आ जाएंगी फिर आपकी जो भी बॉडी है, बॉडी मतलब इसमें आप कुछ रिटर्न कर सकते हैं। या वन मोर थिंग, हियर वी आर अवॉइडिंग रिटर्न ऑल्सो, रिटर्न स्टेटमेंट ऑल्सो। अगर आपके पास में मल्टीपल ये है, मैं आपको जब रिएक्ट का सीखेंगे ना जेएसएक्स सिंटैक्स के अंदर, तब इसके अलग अलग यूज केसेस दिखाऊंगा। फॉर नाउ हियर इज आल्सो हैव फ्यू लिमिटेशंस कि हम यहाँ पे नहीं दे सकते सारे के सारे, रिएक्ट का भी कुछ अलग फंक्शंस वो प्रोवाइड करता है। सो ये एक एरो फंक्शन लिख के रखता हूँ मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे, और एक जो फुल रिस्ट अपना विथ पैरेंथेसिस, ओके, एंड विथ करली ब्रेसेस वाला भी फंक्शन लिख के रखता हूँ, ठीक है। So you can afterward refers and try how it works, what is their different use cases. इसमें मैं दो वैल्यू डाल के रखता हूँ, वैल्यू, so value is let's say 100. Let's see, it should work. Yeah, it is working fine. So this is arrow function. हाँ, किसी को अभी डाउट है कुछ कंसेप्ट, मतलब एरो फंक्शन नहीं समझा, प्लीज पूछो, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन रिएक्ट, ओके। I will just wait for 30 seconds. If you have anything, please let me know. Yes, Abhay. Abhay has something. Can you please comment, or Amit? Can you please unmute Abhay? Yeah. I can unmute himself. Yeah, Abhay, please. Hello. Yes. I can hear you. Hello, sir. I wanted to ask that when we are using the arrow function, Mm-hmm. and so inside the arrow function, we can use another functions like map methods and other functions. Yes, बिल्कुल। आप एरो फंक्शन मतलब क्या है, अपना नॉर्मल फंक्शन का क्या फ्लो होता है, हम फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज कर सकते हैं, उसको हम नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं। तो सेम एज एरो फंक्शन, जब हम अपना एक बड़ा सा एरो फंक्शन भी बना सकते हैं, उसके अंदर आप कितने भी फंक्शंस लिख सकते हो। मैं आपको यूज केस भी दिखा देता हूँ, फॉर श्योर, कोई बात नहीं। जैसे आपने मैप का बोला ना, मैं आपको मैप का ही दिखाता हूँ यूज केस, ठीक है, ओके। जैसे अभी मैं यहाँ पे एक अरे डिफाइन कर लेता हूँ, const let's say array const let's say array is equal to array of 1 2 3,
comma 4. Okay, and afterwards I want to just use this array. So how can I use this array? I want to use map function. Array dot map. Actually, we need to pass this array to the function print function. Okay, तो मैं यहाँ पे अरे देता हूँ, ठीक है, कोई नहीं, हम अरे पास करेंगे उसके अंदर. अरे फंक्शन, मैप फंक्शन हमने कल ही देखा. मैप फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले हम जो भी ऑब्जेक्ट पे उसको कॉल करना होता है, जो भी अरे पे कॉल करना होता है, सिंपल उसको अरे देंगे, और फिर आफ्टरवर्ड्स इसके अंदर भी हम एरो फंक्शन यूज करते हैं. बाय द वे, एरो फंक्शंस की बात में मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करूंगा. Console log, let's say if I take him the index, let's say idx index, I want to print this index. Okay, this index in the sense the value of particular index. यहाँ पे वैल्यू रहेंगी ये, क्योंकि जब से हमने देखा ना था कि वैर क्या करता है, हर एक एलिमेंट को रीड करता है, जो हर एक इंस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे सेपरेट करता है. तो ये हो गया अपना एक मेन एरो फंक्शन. उसके अंदर हमने मैप फंक्शन यूज किया, मैप के अंदर हमने दूसरा एरो फंक्शन लिखा है. ठीक है, सो लेट्स सी हमारा आउटपुट क्या आता है. अभी के लिए मैं दूसरे कंसोल लॉग को कमेंट करता हूँ, और इनसाइड प्रिंट आई विल पास दी अरे. लेट्स से अरे, I passed the array inside this, so hopefully it work होना चाहिए. देखते हैं क्या होता है. Yes, let's see. We get array of 1 2 3 4 5 1 2 3 4. Okay, fine. We can use Thank the, you. yeah, okay, sure. और किसी को कोई डाउट है? You can ask in हिंदी, मराठी, किस में भी चलता है भाई, दोनों आते हैं अपने को. So don't hesitate to ask the questions, because if you are asking questions then only you will get something. Okay, now we will start the installation process. फिर भी मैं 1 मिनट रुकूंगा, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे जाएंगे, और आफ्टर दैट वी विल क्रिएट आवर हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम फॉर द रिएक्ट. Keep doing the installation, and in the meantime कोई भी पूछ Yeah. सकता है कुछ चीज़. ठीक है, चले. Installation is not something you have to be focused on. Yeah. हाँ हाँ, ओके ओके, फाइन. So I shared you document earlier also, so we will see that document only. Very first you need to, we will go with Node.js, setuping Node.js. See, I will just follow my shared document only. You need to just go to the link. You just need to go to the link, download the particular version, whatever you required. Okay, just if you are on Mac, go through the Mac. If you are on Windows, go with Windows. Okay, after compatibility, if you are 32-bit or 62-bit. Okay, if you have Linux, then go with the Linux also. You have binary Linux with 62-bit or 64-bit. So after that, you don't need to do anything. It's very simple. You will get this thing downloaded. It will add just only, मतलब सिर्फ 28 MB का है वो, जल्दी से 1-2 मिनट ही लगेगा डाउनलोड करने के लिए. यू कैन फॉलो विथ मी. अगर किसी ने इंस्टॉलेशन नहीं किया अभी, तो सिंपली अपने Node.js वेबसाइट पे जाओ, जो मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किए, और आई विल डू वन थिंग, आई विल शेयर इट अगेन इन चैट बॉक्स फॉर योर सिंप्लिसिटी. The link, please follow this link. Okay. After that you will get it installed. तन्मय को installation में कुछ problem आई थी, तो तन्मय you can say what issue you have got and we try to solve it. Yeah, you can do one more thing also. If you have any problem, you can share also. Guys, let's make it interactive. अगर आपके Yes, बीच में yes. कोई problem आ रही है, I will make you the host. You share your screen. We will guide you through the installation process personally. So no problem in it. Okay.
So I hope you are following with me. So अगर आपका installation हो गया तो you will see this download. After clicking on download, you will get this to run. After this run, you have simple steps to go to next, 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 and finish. You will get 2 to 3 times next. After that, finish. After that, there is a main one thing is remaining. After all this work done, you will just need to open your CMD. You can open this to directly here. Go to the Windows, type here CMD. You will get command prompt if you are using you on your Windows. Okay, click there. uh, you can simply type anywhere node, node dash p. I have installed version 12.14.1. So if you are not getting this, so let me know. I will try to resolve your problem. If you have any query or any installation problem, please share your screen. We will try to solve your problem so other can also get help from you. If you get the number of your node version, it means your installation is done correctly. Done. Yes, 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 yes. So please check that once in your PC. Yeah, just open CMD and type node dash v. You will get this version 12 or maybe currently version is I don't know. Currently version is 14, so you will get there 14 or something like that. 14.16 version is going on. So I have installed earlier, so I have 12. Doesn't matter, all works fine. I will just wait for 2 or 3 minutes, then we will move forward. Okay, because the time is getting 5:40 now only. We need to create our first project also. Akshay, let's continue also. Okay, okay. Just you will ping me when if anyone comment anything. Yes, Okay. you guys can interrupt anytime in Ah, between. ah. You won't mind it. Okay. Okay. Fine, fine. So if you have installed properly and you will get means you will get this command. So after that, we need to okay, just a minute. Ah. Just copy this command from chat box and type on your CMD. I will share this command. What this command will do, it will install create react app, create react app into your machine. This is a we are using one package to create our react app. We call it is mostly create react app. Okay, उसको हम पहले एक ग्लोबल पैकेज है npm का, उसको हम डॉट डैश जी, इस कमांड का मतलब बताता हूँ मैं. npm क्या है, नोड पैकेज पैकेज मैनेजर से हम उसको इंस्टॉल करेंगे. और डैश जी क्या करता है, इसको ग्लोबली इंस्टॉल करता है, मतलब थ्रू आउट द मशीन के लिए एप्लीकेबल होता है. और उसके पैकेज का नाम क्या है, क्रिएट रिएक्ट ऐप. ठीक है, ये आपको ऐप इसके लिए कुछ मिनट लगेंगे, मे बी 4-5 मिनट लगता है मोस्टली. देखते हैं, इट्स डिपेंड ऑन योर नेट कनेक्टिविटी एंड योर प्रोसेसर. ठीक है, सो इफ यू टाइप दिस यू विल गेट वन सक्सेस मैसेज. प्रॉपर ग्रीन ग्रीन कमांड्स आएंगे वहाँ पे. ठीक है, वो होने के बाद में हम या मोहम्मद इज स्टिल डन. यस, गुड अरबाज. या यू कैन मैसेज मी व्हेन इट डन. सो we will get start with our react project. In meanwhile, I will just create my first folder. Done. Sumit, great.
Hello, Amit, am I audible? Yes, 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 yes. हाँ, Tanmay, is your doubt means is done with your installation? Tanmay, please comment if you are there. Uh, Tanmay no longer has access to chat. Tanmay is not here. Yeah, not okay. Okay, fine. Let's continue. Okay, fine. We will continue now. I hope all of you are installed properly. If not, I will share the guide. Means you have that guide. You can afterwards also check. Now I will moving towards the first installation. Very first, what I did, I just created one empty folder. You can create in your directory anywhere. Just create one empty folder. Now, uh, what I want to do, just go to the particular part and type cmd. So you will get redirected in this particular path. ओके सो आप अभी यहाँ पे मैं जैसे मैंने मेरे ई डायरेक्टिव जो रिएक्ट वर्कशॉप का प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया था उसके अंदर मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ सो टू क्रिएट फर्स्ट प्रोजेक्ट व्हाट यू नीड टू डू npx टाइप npx क्रिएट क्रिएट रिएक्ट ऐप npx create react app ये क्या है जैसे अभी हमने ग्लोबली जो क्रिएट रिएक्ट ऐप डाउनलोड किया ना वही है ये उस पैकेज को यूज करके हम npx इज ग्लोबल कमांड विच इज यूज टू क्रिएट मीन्स ये यूज करके हम क्रिएट रिएक्ट ऐप बनाएंगे और उसका अभी हमें लास्ट में एक कमांड होगा अपना हमें यहाँ पे ऐप का नाम देना होगा कि ऐप का नाम क्या है सो मैंने अभी फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया यहाँ पे तो मैं क्या दूंगा यहाँ पे मैं बोलूंगा कि करंट डायरेक्टरी में जो है ना यहीं पे उसका फोल्डर क्रिएट करो मतलब जो भी मेरा डॉक्यूमेंटेशन तुमको क्रिएट करना है जो भी पैकेजेस क्रिएट करना है उस करंट डायरेक्टरी में क्रिएट करो सिर्फ तो ये क्या करेगा डॉट जो है मेरा वो करंट डायरेक्टरी में क्रिएट करेगा इफ यू डोंट वांट टू क्रिएट इन करंट डायरेक्टरी यू कैन टाइप देयर माई ऐप ऑल्सो समथिंग लाइक दैट टू मेक श्योर दैट दिस माई ऐप जो है वो हमेशा स्मॉल होना चाहिए मतलब जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे रिएक्ट का ये हमेशा स्मॉल लेटर ही होना चाहिए ठीक है सो माई ऐप आप यहाँ पे माई ऐप भी डाल सकते हैं या फिर अगर आपको करंट डायरेक्टरी में यूज़ करना तो डॉट डालेंगे तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा मैंने जैसे पहले फोल्डर बना लिया था तो मैं करंट डायरेक्टरी में मैं डॉट दे दूंगा इसमें सो आई विल जस्ट एंटर इट विल टेक फ्यू मिनट्स टू इंस्टॉल अभी यहाँ पे क्या होता है सबसे पहले वो अलग अलग डिपेंडेंसीज फेच करता है जैसे जैसे आगे आगे होगा ना एक एक स्टेप्स में आपको बताऊंगा कि क्या क्या हो रहा है करके ठीक है सो लेट देम ओके यहाँ पे npx इंस्टॉल हो गया है आप चेक कर सकते हैं कि अभी यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे फोल्डर बन गया होगा फर्स्ट इसका तो यहाँ पे क्या हो रहा है इंस्टॉलिंग क्या हो रहा है अपने अपने रिएक्ट हो रहा है रिएक्ट डॉम रिएक्ट स्क्रिप्ट CRA टेम्पलेट इंस्टॉल हो रहा है अपने आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में ये अभी यहाँ पे कंपेटेबिलिटी चेक करेगा विद रिस्पेक्ट टू कंपेटेबिलिटी आपकी इसमें वो अलग अलग नोड पैकेज में नोड मॉड्यूल्स डाउनलोड करेगा व्हाट इज नोड मॉड्यूल एक फोल्डर क्रिएट करेगा नोड मॉड्यूल के अंदर अलग अलग पैकेजेस होंगे जैसे राउटिंग के अलग पैकेजेस होते हैं वो हम वैसे एक्सटर्नली डाउनलोड करेंगे बट रिएक्ट ही बहुत सारे पहले इनबिल्ट पैकेजेस फेच करता है जैसे रिएक्ट हो गया रिएक्ट डॉम रिएक्ट स्क्रिप्ट्स and much more there is so many things it will take time so let's wait for this installation meanwhile you can ask any question if you have जिसका जिसका ये कमांड रन नहीं हुआ प्लीज बता सकते हो हाँ हाँ सबके पीसी में ऐसा चल रहा होना चाहिए अभी
Maybe my net is also not working properly, so it will take more time. And those who have done with this, please try to install VS Code also. Sir, can we please explain this creation process again with the folder creation? Okay. Okay, folder creation process. वेरी फर्स्ट वी कैन क्रिएट, देखो सबसे पहले तो हमें एक फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। फोल्डर क्रिएट करने के बाद में एक उसके अंदर आप सब फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो जो आपका एक्चुअल प्रोजेक्ट का नाम होना चाहिए। जैसे मेरा अभी एक्चुअल प्रोजेक्ट का नाम मैंने क्या रखा है, फर्स्ट प्रोजेक्ट रखा है, तो मैं इसके अंदर गया, फिर इसके अंदर जाके मैंने क्या किया, टाइप CMD टाइप किया। CMD जब मैं टाइप करूंगा तो मुझे वो प्रॉपरली मेरे पाथ पे रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है, जिस फोल्डर में मेरे को प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। अभी मैं यहाँ पे ना एक कमांड टाइप करूंगा npx, ठीक है, npx create create react app। क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या है, जो अभी मैंने ग्लोबली बोला था कि ग्लोबली डाउनलोड करना है अपने को, npm install -g क्रिएट रिएक्ट ऐप जो किया, उसी को हम यूज करेंगे इसको npx कमांड के थ्रू। npx इज इट्स एडमिनिस्ट्रेटर कमांड, मीन्स वो मोस्ट ऑफ द पैकेजेस फेच करता है एट अ टाइम। दिस द थिंग फॉर npm, ठीक है। तो हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज करते समय तुम्हारा नेट ऑन होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट से तुम्हारे पैकेजेस क्रिएट करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे नेट आपका ऑन नहीं होगा तो आपको थोड़ा सा पहले रन होगा और बाद में एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। तो इसके बाद में हमें देना है अपने प्रोजेक्ट का नाम, जो भी आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है उसका प्रोजेक्ट का नाम देते हैं हम यहाँ पे। और ये प्रोजेक्ट का नाम क्या होना चाहिए, हमेशा स्मॉलर में होना चाहिए, और इसमें आप डैश यूज कर सकते हैं, सिर्फ हाइपन अंडरस्कोर इसमें मोस्टली आई थिंक यूज नहीं कर सकते आप जब फोल्डर क्रिएट करते हैं। अगर अभी आपका क्रिएट भी हो गया तो इन फ्यूचर में आपको वो अलग अलग टाइप के एरर्स देगा, उसके यूज केसेस बहुत सारे होते हैं इसमें, ठीक है। सो ट्राई टू यूज ओनली हाइफन एंड स्मॉल लेटर्स। प्रोजेक्ट का नाम हमेशा स्मॉल लेटर में होना चाहिए, और मेक इट शॉर्ट एंड सिंपल, रीडेबिलिटी होनी चाहिए प्रॉपर। ये कमांड हिट करने से आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अभी अगर मैं ये कमांड करूंगा तो इसमें और एक सब फोल्डर क्रिएट हो जाएगा माय ऐप की इससे, और उसमें वो डिपेंडेंसीज डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। बट अभी मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था, मुझे करंट फोल्डर में इसको डाउनलोड करना था। सो दैट्स वाई व्हाट आई डिड जस्ट डॉट। डॉट क्या होता है, डॉट का मतलब क्या है कि जो मैंने मेरा जो रिएक्ट ऐप जो क्रिएट करना है इस फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर ही क्रिएट करना है मेरे को, और इसके अंदर कोई सब फोल्डर नहीं बनाना है, ठीक है। तो एक डॉट क्या करेगा, इसी पर्टिकुलर फोल्डर में वो ऐप को क्रिएट करेगा। ओके, दिस इज द थिंग, आई होप यू गेट दिस थिंग। Let's check our installation is done or not. Yeah, it's going on. Let's wait. This is due to the net. I think someone's video is on. Please try to switch off your video. Yep. Sorry for that, due to इंटरनेट इशू इट इज़ टेकिंग वाइल। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको रिएक्ट यूज़ करने के लिए आपका जो प्रोसेसर है, विंडोज़ का प्रोसेसर, रैम ज़्यादा चाहिए। अगर आपके लैपटॉप की रैम 4 होगी ना तो इट विल टेक टू मच, मतलब वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। और आप जब उसको एडिट भी करोगे, जब आप काम भी करोगे, तो इट विल टेक मीन्स बहुत स्लो चलेगा, बहुत ज़्यादा स्लो। सो आई विल रिकमेंड अपना रैम अपग्रेड कीजिए। आपको एक्सटर्नल रैम भी डाल सकते हैं आप, मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स में एक्सटर्नल रैम डालने का ऑप्शन होता है। जैसे मैंने भी मेरा अपग्रेड किया है, जैसा अभी 12 कर दिया था मैंने, 4 थी पहले, तो आई एडेड 8 GB। सो यू कैन ऑल्सो ऐड 4 और 8 GB एक्सटर्नल, सो इट विल गेट easy to you if you are seeing to make projects and as a react developer। अगर आपको react developer सच में बनना है तो आपकी सिस्टम की प्लीज अपग्रेड कर लेना आपका रैम, सो इट विल हेल्प यू।
Is there anyone? Okay, at last we done with the installation. So you can see, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आपको पैकेजेस दिखेंगे जो डाउनलोड हो चुके हैं। ये टेस्टिंग के टेस्टिंग लाइब्रेरीज होती है, जैसे जेस्ट है, रिएक्ट है, यूजर इवेंट्स है, यहाँ पे डॉम है। डॉम इज अ डॉक्यूमेंट मॉडल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑल डिपेंडेंसीज है टेस्टिंग के लिए, हम यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग एंड अदर टेस्टिंग कर सकते हैं रिएक्ट के ऑटोमेशन के थ्रू। वो थोड़ा एडवांस टॉपिक है, वो हम बाद में देखेंगे उसको। और बाद में क्या है, यहाँ पे यान है। जैसे मैं यहाँ पे अभी यान इंस्टॉल है मेरे इसमें, यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे npm होता है या फिर यान होता है। तो मैंने एक्सटर्नली यान यूज़ किया है, इट्स स्मूथर। आपको इंस्टॉल करना तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं, सिंपल प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सेम एज नोट जेस्ट, उसका सिंपल सा एक प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना है। मेरे इसमें ऑटोमेटिकली यान है, इसलिए मेरे को यान के कमांड दिखा रहा है। आपकी इसमें npm इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे आपको रन स्टार्ट के जगह पे यहाँ पे npm रन स्टार्ट दिखा रहा होगा, है ना। यहाँ पे npm रन बिल्ड दिखा रहा होगा आपको, यहाँ पे npm रन टेस्ट दिखाएगा। यान के जगह पे बस वो npm रन से रिप्लेस करना होगा आपको, ठीक है। ऐसे सारे कमांड दिखाएंगे। तो ये सारे कमांड्स होते हैं टेस्ट स्टार्ट करने के लिए, होता है अपना जब डेवलपमेंट सर्वर हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट के लिए, ठीक है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रिएक्ट में, अभी आपने अभी तक आप अगर रिएक्ट पे पहले कभी वर्क नहीं किया होगा तो कैसा था। अभी आप स्टैटिक जावास्क्रिप्ट यूज़ करते थे, मतलब सिंपल आप एक फाइल बनाते थे HTML का, उसमें स्क्रिप्ट ऐड करते थे और उसको सिंपली ब्राउजर पे रन करते थे। तो उससे क्या होता था, आपका डायनेमिकली वहाँ पे चेंजेस दिखाते थे। बट यहाँ पे क्या होता है, हम सर्वर यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे ब्राउजर को डायरेक्टली यूज़ नहीं करते। हम ब्राउजर का जो फाइल है, पहले यहाँ पे क्या जो अपना जहाँ पे स्टोर करते थे उसी पर्टिकुलर पाथ को यूज़ करते थे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कंपैरिजन बिटवीन नॉर्मल जावास्क्रिप्ट एंड दी रिएक्ट। यहाँ पे क्या होता है, जो अपना पाथ होता है, ये जो फोल्डर पाथ है, वो सिर्फ अपना फाइल का पाथ होता है जहाँ पे अपनी फाइल स्टोर है, ठीक है। ये सिर्फ अपना ब्राउजर रीड करता है और ब्राउजर रीड करके उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को यहाँ पे रन करता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे सर्वर साइड क्लाइंट एंड सर्वर साइड आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। क्लाइंट सर्वर टाइप आर्किटेक्चर, सो उसकी वजह से वो सर्वर पे रन करता है, ठीक। तो सर्वर रन करने के लिए हमें बाय डिफ़ॉल्ट इसका सर्वर होता है लोकल होस्ट 3000 पे रन होता है, ठीक। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, बिल्ड कमांड हम यूज़ करेंगे जब हम प्रोडक्शन रेडी ऐप बनाएंगे अपना, मतलब हमें अपने जो भी ऐप है अभी डिप्लॉय करने रहेंगे कहीं पे दूसरे प्लेटफॉर्म पे, जैसे AWS, फायरबेस, गिटहब और हेरोकू। वहाँ पे अगर हमें हमारा ऐप डिप्लॉय करना है तो हम यान बिल्ड कमांड यूज़ करेंगे। यान टेस्ट, जब हम टेस्ट केसेस लिखेंगे पहले और उस टेस्ट केसेस को रन करने के लिए हम यान टेस्ट यूज़ करेंगे, ठीक। yarn reject is the different thing to remove the copies and dependencies from the configurations, okay। so अभी यहाँ पे हमें react एक suggestions भी देता है कि आप अपने इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे रिडायरेक्ट हो जाइए और मतलब चेंज हो जाइए, चेंज द पाथ टू दिस एंड स्टार्ट द यान कमांड, ओके। सो मेरी मैंने करंट डायरेक्टरी दी तो मेरी पहले से ही वही डायरेक्टरी है, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा, सिंपली यान स्टार्ट लिखूंगा। आप लोगों को क्या लिखना है, आप लोगों को यान स्टार्ट नहीं लिख रहा है, आपको लिखना है npm run then start, npm run start,
ठीक है, मैं आपको कॉपी पेस्ट करके भेज ही देता हूँ, इट विल बी बेटर फॉर यू। npm रन स्टार्ट करेंगे आप। npm रन स्टार्ट करने से आपका कुछ इस तरह से दिखाएगा आपको। ठीक है, रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट्स, यहाँ पे क्या होता है, अपनी रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाएगी। वो जब तक वो स्टार्ट होती है तब तक हम थोड़ा उसका फोल्डर स्ट्रक्चर समझते हैं, हाउ द फोल्डर स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्ट। सो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है। फर्स्ट प्रोजेक्ट में अब अगर आप अपने फोल्डर में देखोगे नॉर्मल, तो सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पे डॉट गिट फाइल होगी। डॉट गिट फाइल क्या करता है, रिएक्ट इनबिल्ड ही एक इनिशियल रिपोजिटरी क्रिएट करता है, अपनी लोकल रिपोजिटरी। आपको अगर थोड़ा बहुत तो गिट का वर्जन मतलब नॉलेज होगा तो आपको रिपोजिटरी मतलब पता होना चाहिए। जो एक रिपोजिटरी मतलब कुछ नहीं होता है, एक फोल्डर होता है जिसमें अपना अपना कोई भी एक जो कोड है, जितने भी अलग अलग फोल्डर है उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। और वो कंट्रोल वर्जन है, जैसे गिट आपको पता है कंट्रोल वर्जन मतलब मैं पर्टिकुलर कमिट के हिसाब से उसको रिवर्ट और बैक कर सकता हूँ। ठीक है, बैक ट्रैकिंग थिंग्स टाइप होता है उसके अंदर। और ये नोड मॉड्यूल्स है, नोड मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर होता है हमारा इसमें। ये क्या है ना, इंटरनेट से डाउन होता है थ्रू, इसकी वजह से इसके लिए हमें मेन इंटरनेट लगता है। ये अलग अलग डिपेंडेंसी जो रिएक्ट यूज करता है वो डाउनलोड करता है, और इसकी साइज भी काफ़ी ज़्यादा होती है। मैं आपको चेक कराता हूँ इसकी साइज कितनी है। लेट्स सी प्रॉपर्टीज। हाँ, सो आप चेक कर सकते हैं इसकी साइज कितनी है, 138 MB है। सो इट इज़ काफ़ी ज़्यादा साइज है इसके। ठीक है, बट हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो नोड मॉड्यूल्स यूज़ होते हैं सिर्फ अपने लोकली रन करने के लिए यूज़ होता है। जब हम इसकी प्रोडक्शन रेडी मतलब जब हम प्रोडक्शन के लिए एक ऐप बनाते हैं आफ्टर यान डिप्लॉय और npm रन बिल्ड कमांड के बाद में क्या होता है कि इसमें से जो भी हम सिर्फ अपने प्रोजेक्ट में पैकेजेस यूज़ करें उसी को एकदम स्मॉल चंक में फेच करके एक अलग से फोल्डर में बनाता है। एक जैसे बिल्ड करके एक फोल्डर बनाता है यहाँ पे अलग से जब आफ्टर डिप्लॉयमेंट। और उससे हमें बिल्ड फोल्डर से मतलब होता है, उसके अंदर सारा जावास्क्रिप्ट, सारा के सारे एसेट्स, इमेजेस, सब कुछ वहाँ पे एंड ऑल CSS वो एक फोल्डर में मर्ज कर देता है। ठीक है, एंड दिस इज अ नोड मॉड्यूल्स, इसके अंदर हमारे सारे पैकेजेस होते हैं। और ये होता है पब्लिक फोल्डर, एक इम्पॉर्टेंट। पब्लिक फोल्डर के अंदर क्या होता है, ओके आई थिंक वी आर गेटिंग 6 PM ऑल्सो। ओके, सो मैं आपको फटाफट एक फोल्डर स्ट्रक्चर बता देता हूँ इसका। पब्लिक के अंदर क्या होता है, HTML है होना, लोगो है, ये मेन जस्ट मैं एक बार चेक करता हूँ ये स्टार्ट हो गया क्या सर्वर, सो आई कैन शो यू। यस इट्स स्टार्टिंग। यहाँ पे लोगो होता है, मेन फिस्ट फाइल होती है। ये एक मिनट, यहाँ पे हमारा सर्वर स्टार्ट हो रहा है अभी। सबसे इंपॉर्टेंट है अपना ये सोर्स। सोर्स के अंदर क्या है ना, जितना भी हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट वो सारा का सारा सोर्स फोल्डर में जाएगा। जैसे अभी इनबिल्ड क्या होता है, जैसे ऐप इंडेक्स इंडेक्सियस, यहाँ पे टेस्ट केसेस के लिए ऐप डॉट टेस्ट, और सेटअप के लिए टेस्ट सेटअप्स, वो इनबिल्ड होता है। ठीक है, और फिर गिट इग्नोर फाइल सबको पता होगा, जिसके अंदर हम नोड मॉड्यूल्स और बाकी के फाइल्स का नाम लिखा होता है, यान लॉग, जो हमें रिपोजिटरी पे उसको पुश नहीं करना होता, ऐसे फाइल ही होते हैं। सब उससे भी इम्पोर्टेंट है ये पैकेज डॉट जेसॉन क्या डिटेक्ट करता है, ये लिस्ट मतलब एक स्टैक मेंटेन करता है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कौन कौन से जो डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल्ड हुई है। ठीक, ये आपको सिंपल में दिखा देता है यहाँ पे। दिस इज द जेसॉन फाइल। इसकी size okay, let it be. We first see this is the first react app। ठीक है, ये काफी कूल लगता है, मतलब यहाँ से आप ऑफिशियल रिडायरेक्ट पे ये करते हैं। ये टेम्पलेट है, मतलब जैसे आप क्रिएट रिएक्ट ऐप से अगर आपका टेम्पलेट क्रिएट करोगे तो आपको ये इनबिल्ट टेम्पलेट मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम अगले अभी तो वैसे टाइम हो गया है, 6 बज गए, सो वी विल लुक इन डीप इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, किसी को अभी डाउट है यहाँ पे? Node.js gives runtime environment for Node. Akshay, go to the folder structures. Inside the source. Yes. Okay, I think you should explain
purpose of this files. Actually मुझे भी इसमें डाउट होता है when I work अच्छा on अच्छा, React. ठीक है Yeah. ओके। हाँ देखो, सबसे पहले क्या होता है ना, अपना सबसे एक हायरार्की होती है। वैसे मैं आपको 1 मिनट ना हायरार्की समझा देता हूँ, इसके थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझेगा। वी विल एक्सटेंड फॉर 5 मिनट्स, ओके ठीक है। सो हमें 5 मिनट लगेंगे, आपको पूरा Yes. Yes, of ट्री course. स्ट्रक्चर से समझा देता हूँ कि उसको वर्क कैसे करता है, ठीक। ई बुक, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई थिंक ई बुक। हाँ, आई जस्ट वांट दिस प्रैक्टिस सेशन, दैट्स व्हाई। हाँ देखो, अभी इसका रिएक्ट का आर्किटेक्चर कैसा होता है ना, रिएक्ट ना पूरा ट्री स्ट्रक्चर पे काम करता है। मतलब सबसे हायरार्की पे अपना एक इंडेक्स फाइल होता है, ठीक है। ये इंडेक्स होता है हमारा, इंडेक्स फाइल, IDX दे देते इस पे, इंडेक्स सिंपल डॉट। इंडेक्स के नीचे क्या होता है, अभी अपना एक ऐप होता है, दूसरा ऐप फाइल होता है, ठीक है। ये ऐप फाइल होता है। फिर अभी ऐप फाइल के अंदर हम जितने भी अलग अलग कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे ना, जैसे मान के चलो मैं ऐप के अंदर अभी कोई बटन क्रिएट करता हूँ, कोई कार्ड क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे बटन आ जाएगा मेरा, यहाँ पे कार्ड आ जाएगा। ये एक पूरा ट्री स्ट्रक्चर फॉलो करता है। यहाँ पे मैंने बटन क्रिएट कर दिया, यहाँ पे मैंने कार्ड क्रिएट कर दिया। तो ये रन करने का इसका एक ही इंपॉर्टेंस क्या है कि ये पूरा हायरार्की में रन होता है। इसको हमेशा हमें एनक्लोज करके रखना होता है। अगर आपने इसकी हायरार्की मतलब ब्रेक कर दी, सपोज मान के चलो आपने कुछ तो भी एक यहाँ पे एक अलग सा प्रोजेक्ट बना दिया और उसको आप डायरेक्टली, आपका मानना है कि आपको उसको डायरेक्टली इंडेक्स पे यूज करना है, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ये पॉसिबल नहीं होता है रिएक्ट में। उसको आपको अगर यहाँ पे यूज करना है तो आपको सबसे पहले उसको ऐप में यूज करना पड़ेगा, फिर ऐप ही ऐप डॉट जेएस फाइल में यूज करना पड़ेगा और ऐप ही उसको इंडेक्स में यूज कर सकेगा, ठीक है। इंडेक्स में यूज कर सकेगा। दिस इज द मेन स्ट्रक्चर। ये एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके आप हायरार्की ब्रेक नहीं कर सकते। और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो चाइल्ड होते हैं हमेशा, मतलब सिबलिंग्स जो रहते हैं ट्री के, सपोज एक कार्ड और बटन है, अभी दोनों के दोनों चाइल्ड है ऐप के, तो ये दोनों डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे। मतलब अगर मुझे डेटा शेयर करना है एक दूसरों का डायरेक्टली एक मैक से, तो मैं डायरेक्ट शेयर नहीं कर सकता। उससे क्या होगा, इसकी हायरार्की ब्रेक हो जाएगी, यहाँ पे एक अलग लिंक क्रिएट हो जाएगी, तो वो उनको नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए कि तुम पहले ऐप से क्रिएट करो अपने जो भी चीज़ है, तुम पहले ऐप को बताओ, कार्ड पे ऐप को बताएगा, फिर यहाँ पे तुम दोनों की चीज़ें मैनेज कर सकते हो। ये ऐसा होता है। So, इसके वजह से ये चीज़ मैंने क्यों बताई, एक हायरार्की समझने के लिए, तो आपको अभी फोल्डर स्ट्रक्चर समझने में आसान होगा थोड़ा। मैं ना इसको 1 मिनट थोड़ा VS कोड में ओपन करके दिखाता हूँ, सो यू विल गेट बेटर आइडिया। If you have VS Code installed, you can type directly code dot, तो ये VS Code खोल देगा। It's a shortcut command to open VS Code. ओके, तो ये जो हमने अभी है फोल्डर क्रिएट किया था, ठीक है, फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसके अंदर इतने फोल्डर होते हैं, नोड जेएस, नोड मॉड्यूल्स, पब्लिक, सोर्स एंड दिस गिट इग्नोर एंड दिस इज अ रूट फोल्डर्स, गिट रीडमी फाइल एंड लॉग। इसके लॉग्स होते हैं जितने भी बार अपन ये करेंगे, तो छोड़ो उसके लिए, अभी सबसे हम देखते हैं सोर्स को। तो सबसे इसकी बेसिक फाइल होती है, मतलब जो रूट लेवल की, जैसे मैंने बताया रूट लेवल की फाइल होती है इंडेक्स। ये इंडेक्स फाइल है, ठीक है। तो इंडेक्स फाइल के अंदर है अपना ऐप जेएस, जैसे मैंने बोला था कि हायरार्की यूज करता है, तो उसके अंदर है ऐप, ठीक। तो ये है हमारा ऐप फोल्डर, ये है ऐप। तो जो भी कंटेंट रहता है अपना मोस्टली हम ऐप के अंदर लिखते हैं। अभी ये एक टेम्पलेट है, इसके अंदर इसने सिबलिंग्स यूज नहीं किए ऐप के, सो इसका यहाँ पे सिर्फ एक ही है। जब जो भी कंटेंट लिखते हैं हमेशा, ये जो आपको दिख रहा है div हेडर इमेज पी, ये आपको लग रहा है HTML जैसे, बट ये HTML नहीं है। दिस इज अ JSX सिंटैक्स। मतलब एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है JSX, आपको एक HTML फ्लेवर ऐड करता है आपके कोड के अंदर, जो आपको इजी रीडेबिलिटी के लिए काफ़ी आसान हो और आपका कोडिंग के लिए भी थोड़ा सिंपल हो, ठीक है। दिस इज ऐप डॉट सी एस, और ये उसके जो होते हैं ना एक एसोसिएटेड पेजेस होते हैं। मतलब ऐप डॉट जी एस है तो उसके अंदर मैं ऐप डॉट सी एस एस यूज़ करूँगा अगर मुझे सी एस एस यूज़ करनी है। तो जो मेरा इंडेक्स डॉट जे एस पेज है, ठीक है, इंडेक्स डॉट जे एस यूज़ करना है तो उसके लिए एसोसिएट पेज रहेगा मेरा इंडेक्स डॉट सी एस एस, ठीक। नेमिंग आप कुछ भी कर सकते हैं, बट ये प्रॉपर कन्वेंशन इसके लिए उन्होंने इंडेक्स को इंडेक्स रखा है, ऐप को ऐप रखा है। मतलब समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई इसका फोल्डर है। और ये सिंपल लोगो यूज़ किया इन्होंने, जो कि यहाँ पे ऐप डॉट यूज में एक्सपोर्ट किया है, यहाँ पे इंपोर्ट किया है। ये सेटअप टेस्ट है, यहाँ पे टेस्ट केसेस लिखते हैं हम, ठीक। तो इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए हम टेस्ट केसेस नहीं देखेंगे, ठीक है।
क्योंकि उसका कभी मतलब वो जब प्रोडक्शन के लिए रेडी करते हैं तब के लिए काम होता है। एंड दिस इज अ रिपोर्ट वेब विस्टल फाइन। इसके लिए भी हम अपने प्रोजेक्ट में कुछ नहीं करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब दिस इज अ बैकएंड फाइल, दिस रिएक्ट यूज, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हम इसको नहीं देखेंगे। और दिस इज अ नॉर्मल लोगो एसवीजी, ठीक है। आई होप अमित यू गेट द क्लियरिटी। मैं इसका कोड अभी Yes, नहीं समझा means रहा हूँ index क्योंकि हाँ सिंटैक्स, index.js वो top layer की फाइल है which is हाँ going to be हाँ printed on the front end यस। और of UI. इंडेक्स डॉट फाइल जो है ना, ये रिलेटेड होती है यहाँ से, ये जो पब्लिक है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये यहाँ से रिलेट होती है, ये अपना रूट फोल्डर है। इसको मैं कल और डीप में और अच्छे से अच्छे समझाऊंगा क्योंकि अपने पास में अभी टाइम लिमिटेशन है ना। तो अगर Yes, yes, मैं exactly. समझाने जाऊंगा तो 10-15 मिनट इसमें लग जाएंगे। स्टिक मोड क्या होता है, व्हाट इज दिस इंपोर्ट, व्हाट इज एक्सपोर्ट्स एंड ऑल दिस थिंग्स, ओके। Yes, right. हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट अपना मतलब जो ब्राउजर को दिखता है वो सिर्फ html.index है, index.html सॉरी, index.html जो फाइल है वो सिर्फ ब्राउजर को दिखता है। और फिर यूजिंग आवर नॉर्मल जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट हम इस रूट फोल्डर को कॉल करते हैं। जो रूट डिव दिख रहा है ना, id.root, इसको हम कॉल करते हैं यहाँ पे इंडेक्स में। ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हमारा नॉर्मल ओल्ड जावास्क्रिप्ट, इसमें कुछ रिएक्ट का अलग कुछ सीन नहीं है। यहाँ पे सिंपल अपन आईडी से रीड कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इट्स रूट। फिर और इसके आगे जो भी चीज़ है वो पूरा रिएक्ट के ऊपर होता है, रेंडर एंड रिएक्ट डॉम एंड ऑल दिस थिंग्स, दिस इज अ रिएक्ट वर्क, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड द ट्री स्ट्रक्चर। जस्ट कभी भी Yes, आपको right. लगेगा कि फ्लो कैसा है तो बस ये ट्री स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना। रिएक्ट पूरा ट्री स्ट्रक्चर पे काम करता है और कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ठीक है, ओके। So we will wait for 2 minutes, and हाँ if anyone have a doubt, they can ask, and then we'll end the session. यस श्योर, Akshay, in the meantime, you can revive all the yes tasks we yes did today. yeah, recap from the starting what we did. We did I will just go to the file. We saw the previous what we did yesterday, और फिर हमने देखा डिस्ट्रक्चरिंग थिंग, देखा एरो फंक्शन, देखा हाउ एरो फंक्शन वर्क्स, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ एरो फंक्शंस, व्हाट इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एरो फंक्शंस। हमने सिंगल लाइन एरो फंक्शन देखा, एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं एरो फंक्शन को, मल्टी लाइन मतलब ओके। We saw the multi-parameter, using multi-parameter how we can do the arrow function. Before that we see the destructuring in objects, which is very important thing. Very soon we are going to use this thing, destructuring in array and destructure in object. Before that we read spread operator, please remember this. We saw the arrow function and what is it? Map function, map and find index. Acha, I think we left with this now, find index. I will just explain in short. फाइंड इंडेक्स क्या करता है, कुछ भी नहीं करता है। फाइंड मतलब क्या था, अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर अरे से कोई चीज़ फाइंड करनी होगी सिंपल अब कंडीशन से फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या दिया है, एलिमेंट, एलिमेंट एक मेरा ये है, एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा मैं, जैसे सेम सिंटैक्स इसका सेम रहता है, अरे फिल्टर, एक अरे ऑब्जेक्ट पे ये कॉल होगा अरे पे, उसके बाद में क्या होगा, एलिमेंट पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करेगा हर बार। तो एक बार चेक करेगा एलिमेंट इज ग्रेटर देन 10, जो पहला इंडेक्स मिलेगा उसको ग्रेटर वाला, वो उसी को रिटर्न करेगा। क्योंकि जब कोई आप देख सकते हो 130 भी ग्रेटर है और 44 भी ग्रेटर है 10 से, बट फिर भी उसने क्या 12 को रिटर्न किया। क्यों 12 को रिटर्न किया, क्योंकि जब वो स्टार्टिंग इंडेक्स से चेक करते जाएगा तो 12 उसको पहले एनकाउंटर हुआ, तो सिंपली उसने रिटर्न कर दिया, उसका एग्जीक्यूशन वहीं पे खत्म हो जाता है। ये एक डिफरेंस होता है फाइंड और अपना फिल्टर में और अरे में। अरे फिल्टर क्या करते हैं, वो दोनों इसको ना सारे इसको इटरेट करते हैं और पूरा चेक करके हर एक, अगर जब तक उसकी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तब तक वो सारे फॉल्स वाले मतलब ट्रू एलिमेंट्स को यहाँ पे फेच करते रहते हैं। जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक वो फेच करते रहते हैं। जिस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे वो कंडीशन फॉल्स होगी उस पर्टिकुलर इंस्टेंस को फेच नहीं करते, वो फिल्टर का काम होता है। फाइंड का काम सिर्फ फाइंड करना होता है। और उसके बाद में एक होता है अपना फाइंड विथ इंडेक्स। अभी आपको फाइंड करना है कि पर्टिकुलर, अभी मैंने यहाँ पे 12 किया ना, तो मुझे चाहिए कि मैं उसका इंडेक्स फाइंड करूँ, 12 का इंडेक्स क्या है। तो अपन फाइंड इंडेक्स मेथड यूज करते हैं, उसका सिंपल सा यूज केस है। यहाँ पे पहले एक एरो फंक्शन बनाई उन्होंने। अभी हमने एरो फंक्शन देखा तो आपको समझने में आसानी जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप बिफोर इक्वल टू एंड आफ्टर इक्वल टू। बिफोर इक्वल टू क्या लिखा है इन्होंने, कॉन्स्ट इज लार्ज नंबर, देन आफ्टर इक्वल टू सिंपल सा एक पैरामीटर पास किया है पहला वाला, और दूसरा बाद में इसका सिंगल लाइन है, ठीक है, इसकी मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स नहीं है, तो उसने करली ब्रेसेस को ओमिट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल क्या लिखा है उसने, एलिमेंट इज ग्रेटर देन 13,
एलिमेंट इज ग्रेटर देन 13, तो ये इसमें ना रिटर्न स्टेटमेंट भी आ जाता है सिंगल इसमें। तो यहाँ पे जैसे ही वो एलिमेंट इज ग्रेटर देन 13 एनकाउंटर होगा तो उसका वो इंडेक्स रिटर्न करेगा इस बार। एलिमेंट इज ग्रेटर देन 13 तो पहले चेक करेगा कि थर्ड वाला इंडेक्स 123, ये वाला ग्रेटर है 13 से, 5 नहीं है, 12 नहीं है, 8 है, तो इंडेक्स करेगा अपना 0 1 2 3, 3 वाला पहला एनकाउंटर हो गया, वो 3 कर दिया। देखो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। लेट्स से एलिमेंट इज ग्रेटर देन 8, सो क्या होना चाहिए अभी, 1 होना चाहिए अपना इंडेक्स, तो 1 आ जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ज़्यादा कुछ ये नहीं है, टफ नहीं है, सिंपल सा इंडेक्स रिटर्न करना है। और एक चीज़, ये मैं आपको वेबसाइट प्रेफर करूँगा अगर आपको कभी भी कोई भी इन फ्यूचर कोई डाउट आता है तो MDN वेब डॉक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट, जो आपको अलग अलग मतलब इसमें सारे रिएक्ट और जितने भी लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं सब दिखते हैं। तो मैं ये ना व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा आपको वेबसाइट, तो इट्स विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, इवन आई विल शेयर दिस इन चैट बॉक्स आल्सो, so you can go anytime and check the concepts here. Okay, anyone have means any doubt now? I will just wait for a minute, you can see. हाँ, फिर उसके बाद में हमने इंस्टॉलेशन देखा था और फिर एंड प्लीज ट्राई टू यूज VS कोड। इट्स सिंपल, नॉर्मल डाउनलोडेशन है उसका, उसको कुछ ज़्यादा इतना टफ नहीं है, सिंपल डाउनलोड करना है और उसको यूज़ करना है। और फिर ट्राई टू मेक अकाउंट ऑन गिटहब एंड इंस्टॉल योर लोकल गिट ऑल्सो, ठीक है। I think Akshay, we are good for today. Yes, okay. Around 6:14, so we'll stop here. And anyone have any doubt, they can ask on WhatsApp Group chat, also, or they can yeah. personally call or take something. Anything, Mhm. anything is acceptable. Yes. Okay. Thank you guys. Thank you for the today's section, coming for the today's section. Okay. Thank you. और हाँ, And कल से Thank you. हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, मतलब कल तो और भी मजा आएगा, हम प्रॉपर रिएक्ट पे वर्क करेंगे एंड वी आर गोइंग टू yes, स्टार्ट विद लेटेस्ट कंसेप्ट्स लाइक प्रॉप्स, स्टेट, हाउ इट वर्क्स, JSX सिंटैक्स। मजा आएगा कल से, ठीक है। yes. विल And स्टार्ट like what we प्रोजेक्ट्स। did on React today, the moving React logo is kind of a hello world program for React. Yes. So we have done all the configurations and setup. So we are ready to go with the project now. या ठीक है, चलो फिर बाय। Okay. Thank you, everyone. Bye bye. थैंक